Good morning, my dear friends. Today we will start electrical network, which is very important subject for the RSEB JN exam 2026. Okay, electrical circuit, or which is also known as electrical network. Electrical network. Okay, but today we will start electrical network. Okay, which weightage is around 8 marks to 12 marks. Okay, now basic question is, what is the electrical circuit? Basically, our main aim is to transfer the energy from one point to another point. Okay. Basically, our main aim is to transfer the energy from one point to another point. Okay. And for this, we require an interconnection between electrical elements or components. This interconnection is also called as the electrical circuit. Now you can write basically our main aim is to transfer the energy is basically our main aim is transfer the energy from one point to another point, and for this and for this and for this we required an interconnection, and for this we required an interconnection of electrical elements of electrical elements or components. Okay, this interconnection is called as this interconnection is called as electrical circuit. Okay, circuit is closed, whereas network may or may not be closed. Okay, now you can remember this statement: circuit is closed, whereas network may or may not be closed. Okay, now write this: circuit is closed and network may or may not be closed. Okay, that means the circuit is the subset of the network. That means the circuit is the subset of the network. That means circuit is subset of network. Okay, R L, this is the C, this is V. Current passing through the circuit is I. R L C is the components of the circuit. That is the circuit. Okay, this is the circuit. Okay, now the first one is charge. What charge? What is the charge? Charge is an electrical property of the atom particles to experience a force when placed in an electromagnetic field. Charge is an electrical property of atom particles to experience a force when placed in an electromagnetic field.
Okay, the unit of the charge is coulomb. Unit of charge is coulomb. Okay, as all of you know that one electron is equal to how many coulomb charge? Okay, one electron is equal to 1.623 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. That means one electron is equal to 1.623 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the large unit of charge. Large unit of charge. The most basic quantity in electrical circuit is charge. The most basic quantity of electrical circuit is charge. Is okay. The most basic quantity in electrical circuit is charge. The most basic quantity of electrical circuit is charge. Okay, दिख नहीं रहा? चलिए कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए. The most basic quantity in electrical circuit is charge. Okay, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. How many electron contributes towards 1 coulomb of charge? Okay, how many electron contributes contribute towards 1 coulomb of charge? 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. Okay, as all of you know that 1 electron is equal to 1.623 into 10 to the power minus 19 coulomb. The question is says that how many electrons contributes towards 1 coulomb of charge. Okay, now that means 1.623 into 10 to the power minus 19 coulomb is equal to 1 electron. Now we can write this. So 1 coulomb is equal to 1 upon 1.623 into 10 to the power minus 19 electrons. Okay, so 1 coulomb of charge is equal to, now if you can divide this, that is 6.24 into 10 to the power 18 electrons. Okay, that is the most important result, and you can remember this. Okay, 1 coulomb of charge is equal to 6.24 10 to the power 18 electrons. इसके बाद चलते हैं बेटा, what is the law of conservation of charge? Okay, what is the law of conservation of charge? As all of you know that charge can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one body to another body. Okay, that is the law of conservation of charge. Okay, continuity equation support the law of conservation of charge. Now what is the continuity equation? Continuity equation support the law of conservation of charge. Continuity equation is del J is equal to minus the del rho V upon del T. This is the continuity equation. Okay, continuity equation support the law of conservation of charge. Continuity equation support the law of conservation of charge. Del J is equal to minus the del rho V upon del T. Now what is the next one is? Okay, now what is the next one is? Now what is the current? First one is charge, second is the current. What is the current? The flow of electrons, right? Current is the rate of change of charge with respect to time. Current is the rate of change of charge with respect to time, or we can say that the flow of current, the flow of electrons. Okay, current is the flow of electrons, or rate of change of charge. Rate of change of charge, okay, with respect to time, with respect to time is called as the current. Okay, that means current I is equal to dq upon dt. What is the q? Q is the charge, okay, and t is the time. So current I is equal to rate of change of charge with respect to time, या फिर हम यही कहें बेटा कि rate of change of charge, that is n up. Okay, now current I is equal to dq upon dt. इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है बेटा इसकी कूलम पर सेकेंड.
कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। ओके, कूलाम पर सेकंड बेटा इसकी यूनिट होती है, क्योंकि चार्ज जो बेटा कूलाम में होता है, टाइम जो बेटा वो सेकंड में होता है, तो कूलाम पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, और बेटा इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। ओके, करंट, बात समझ में आया बेटा। अब बेटा करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन कहां से लेते हैं बेटा, सर्किट जो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां से निकलती हुई दिखाते हैं। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा निकलती हुई दिखाते हैं करंट की डायरेक्शन को। नाउ द नेक्स्ट वन इज वोल्टेज। The next one is voltage. What is the voltage? Voltage is the to move the electron from one point to another point in an electrical circuit. For this, an external force is required, and this force is provided by electromotive force. Okay, and this force is provided by electromotive force is called as the voltage. Is called as the voltage, and its unit is volt. That means voltage V is equal to dW upon dQ. Voltage V is equal to dW upon dQ. That unit is joule per coulomb. That unit is joule per coulomb. The unit of energy is the joule, and the unit of charge is the coulomb. That means joule per coulomb or volt. ओके, अगला देखते हैं बेटा, नंबर 4 वन इज द पावर। पावर, पावर क्या होती है बेटा, पावर पी। ओके, पावर क्या होती है बेटा, व्हाट इज द पावर? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। आप बेटा एक काम करो, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू लिखो, इंटू डी क्यू अपॉन डी टी लिखो। मैंने क्या किया बेटा, डी क्यू से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डी क्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब बेटा मैंने आपको बताया अभी डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू क्या होता है बेटा, वी होता है। क्या होता है बेटा, वी। आप इसे टी की फॉर्म में लिख लीजिए बेटा, टू, क्योंकि बेटा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। अभी मैंने लिखा है बेटा वोल्टेज वी, वी टी इंटू दिस इज द करंट आई टी। ओके, तो बेटा आपको मैंने ये बताया है पहले भी कि पावर पीटी क्या होता है बेटा, पावर पीटी इज इक्वल टू वी टी इंटू आई टी। ओके, पावर पी इज इक्वल टू वी आई आपने पढ़ा है ना बेटा, पावर पी इज इक्वल टू वी टी इंटू आई टी। ओके, ये बेटा यहाँ से आ जाएगा। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो बेटा यूनिट होगी, एनर्जी की यूनिट होती है बेटा जूल, और टाइम की होती है बेटा सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। ओके, और वाट, और वाट बेटा, जूल पर सेकेंड और वाट इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट। बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलरिटी आर इंपोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ द पावर। ओके, देखिए देखिए बेटा, लाइक दिस। ओके, current direction, that is the beta, this one is minus, this one is plus. Okay, in that case that is plus, this one is minus. बेटा अगर यहाँ से करंट आई एंटर करता है, ओके, ये बेटा क्या है, वोल्टेज। यहाँ से बेटा मैं कहता हूँ कि करंट आई जो है बेटा एंटर करता है। ओके, और यहाँ क्या है बेटा, बेटा देखिए अब दोनों सिग्नल्स में क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे बेटा करंट जो है बेटा नेगेटिव सिग्नल पर एंटर कर रहा है, और यहाँ पे बेटा करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे बेटा एंटर कर रहा है। तो दोनों में क्या क्या दिखेगा बेटा, दोनों में कि बेटा अगर बेटा नेगेटिव टर्मिनल पर करंट एंटर करता है यानी कि पॉजिटिव से निकलता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पावर डिलीवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, पावर डिलीवर। डिलीवर क्यों बेटा, क्योंकि बेटा करंट आई जो है वो पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ओके, यानी कि बेटा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से निकल रहा है, तो पावर डिलीवर बोलेंगे बेटा इसको। ओके, और बेटा अगर करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहा है, इसका मतलब पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बेटा, पावर एब्जॉर्ब। ओके, पावर एब्जॉर्ब होगी बेटा, एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब। और इसे बेटा अपन बोलते हैं डिसिपेशन पावर, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेटेड। ठीक, पावर डिसिपेटेड बोलते हैं बेटा, रिसीव्ड पावर बोलते हैं इसे, और पावर रिसीव्ड। बात क्लियर बेटा। यहां से देख लीजिए, अगर बेटा आपका करंट नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, तो बेटा पॉजिटिव से तो जाता है,
है ना, उसी को बोलते हैं बेटा पावर डिलीवर्ड, यानी कि पावर को डिलीवर कर रहा है आपका सोर्स। ओके, अगर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका करंट एंटर करता है तो उसे बोलते हैं बेटा पावर एब्जॉर्ब और पावर डिसिपेटेड और पावर रिसीव। इसे बेटा आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन द करंट इज एंटरिंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन द करंट इज एंटरिंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल, देन द एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर, देन द एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर। बेटे दो एलिमेंट्स हैं, ओके। एक बेटा इसका जस्ट अपोजिट आएगा कि व्हेन द करंट एंटर्स एट द नेगेटिव टर्मिनल, या फिर बेटे यू लिखिए कि करंट 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 लिविंग एज द पॉजिटिव टर्मिनल। बेटा लीव कर रहा है ना पॉजिटिव को, ओके। करंट लिविंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल, देन द एलिमेंट इज डिलीवर्ड पावर, देन द एलिमेंट इज डिलीवर्ड पावर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा यहां से बना करके कि जिससे आपको पता चले कि एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, डिलीवर्ड का मतलब क्या है। चलिए बेटा देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आपको मैंने कुछ सर्किट दिखाए हैं, यहां से बेटा आप बताइए मुझे कि पावर एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा है, डिलीवर कौन सा कर रहा है, ओके। देखिए बेटा यहां से बेटा बताइए आप कि पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर कौन सा कर रहा है। देखिए अब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर आप खुद देखिए बेटा, अगर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल पर अगर बेटा करंट आ रहा है तो क्या होगा बेटा, पावर डिलीवर होगा, एब्जॉर्ब होगा। पॉजिटिव पर आ रहा है, पॉजिटिव पर आने का मतलब बेटा पावर एब्जॉर्ब होगी, ओके। पावर क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब, ओके। अब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां से अगर ये निकल रहा है हमारा, ओके, करंट, अगर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो उसे बोलेंगे बेटा पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड, ओके। क्या होगा बेटा, पावर डिलीवर्ड होगा। अगर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर आएगा तो क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा, ओके। पावर एब्जॉर्ब होगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस पर आ रहा है बेटा हमारा करंट, तो क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। अगर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल जो है उससे आपका करंट निकल रहा है, यानी कि नेगेटिव पर आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो क्या होगा बेटा, पावर क्या होगी, डिलीवर्ड होगी बेटा, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है, ओके। यहां देखिए बेटा पॉजिटिव से निकल रहा है तो क्या होगा बेटा, पावर डिलीवर होगी, पावर डिलीवर्ड होगी। और बेटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका क्या आ रहा है बेटा, करंट जो है वो आ रहा है पॉजिटिव पर, तो क्या होगा बेटा, पावर एब्जॉर्ब होगी, पावर एब्जॉर्ब होगी। समझ में आया बेटा। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। Now, statement of the law of conservation of energy is that energy can neither be created nor be destroyed. Okay, energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one form to another form. Okay. Now, law of conservation of energy. Law of conservation of energy. That means, in that case, law of conservation of energy says that. Law of conservation of energy says that, write down beta, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one form to another form, but it can only be transferred from one form to another form, okay। बेटा हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। इसका ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। चलिए बेटा ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम चलते हैं। चलिए बेटा अभी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखते हैं बेटा सीधा, हाँ अब हम बेटा अगर बात करें किसी भी सर्किट के बारे में, तो एक सर्किट में बेटा जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी ही एनर्जी डिलीवर्ड होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो सर्किट होता है उसके अंदर जो नेट पावर होती है, एल्जेब्रिक सम जो होता है बेटा पावर का, वो जीरो होता है। तो बेटा नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट मस्ट बी ऑलवेज जीरो, ओके, इट मस्ट बी ऑलवेज जीरो। That means summation of power equal to zero. इसका मतलब होता है बेटा summation of absorbed power is equal to summation of delivered power, power delivered, okay। ये बेटा एक सर्किट के अंदर होता है, और बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा आपका सर्किट ही गलत हो जाएगा। किसी भी सर्किट के अंदर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर के इक्वल होती है। चलिए बेटा इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपसे बेटा पावर पूछ रहा है बेटा ईच एलिमेंट के अंदर, ओके। यानी कि बेटा आपको बेटा प्रत्येक एलिमेंट में आपको पावर निकालनी है, ओके। और आपको ये भी शो करना है, आपको बेटा ये भी बताना है कि एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर के इक्वल होती है, ठीक है। यहां से देखिए बेटा आप, देखिए बेटा 4 एम्पियर इधर से जाएगा, 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर से कितना जाएगा बेटा 9 एम्पियर, ओके। 9 एम्पियर जाएगा बेटा, 4 एम्पियर इधर से, 5 एम्पियर इधर से, तो इधर से जाएगा बेटा 9 एम्पियर, 5 + 4 9, ओके। 6 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 इधर से जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा बेटा ओनली 1 एम्पियर, तो बेटा इधर कितना जाएगा 6 - 5 1 एम्पियर, ओके। एंड नाउ 9 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर दैट इज द 10 एम्पियर, तो बेटा इधर से कितना निकलेगा 10 एम्पियर करंट, ओके। ये बेटा आपका रेफरेंस नोड है, इसे बेटा आप रेफरेंस मानोगे, ये बेटा आपका रेफरेंस नोड है, ठीक है। यहां से बेटा आप इसे
ये आपके तीन बेटा नोड्स हैं, नोड 1, V2 नोड एंड दिस वन इज द V3 नोड। ओके, आप यहां से देख सकते हैं बेटा, क्या देखोगे बेटा, सबसे पहले देखिए पावर एट 10 वोल्ट। ओके, 10 वोल्ट पर पावर क्या होगी, देखिए बेटा, पावर एट 10 वोल्ट क्या होगी बेटा, देखो 10 वोल्ट पर बेटा 10 एम्पियर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहा है, यानी कि हम प्लस लेंगे उसे, एब्जॉर्ब पावर होगी ना बेटा, एब्जॉर्ब पावर का प्लस ले लीजिए बेटा, प्लस पावर P इज इक्वल टू VI होती है बेटा, V कितना है 10 और I कितना है 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या होगा बेटा 100, दैट इज इक्वल टू 100 वाट। ओके, अब देखिए बेटा पावर निकालिए आप, पावर निकालिए आप 2 वोल्ट पर, पावर एट 2 वोल्ट। ओके, पावर P इज इक्वल टू VI होता है बेटा, V कितना है 2, I कितना है 9, बट बेटा करंट जो आ रहा है वो माइनस पे आ रहा है। देखिए बेटा करंट आपका 9 एम्पियर माइनस साइन पे आ रहा है, यानी बेटा माइनस आएगा, माइनस का 2 इंटू 9, माइनस का 2 इंटू 9, दैट इज माइनस का 18 वोल्ट। ओके, अब देखिए बेटा पावर निकालिए आप 3 वोल्ट पर, पावर एट 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पर पावर निकालिए बेटा, करंट कितना आ रहा है 1, पॉजिटिव टर्मिनल पर आया, यानी बेटा आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, एब्जॉर्ब पावर होगी, कितना होगा बेटा 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज द 3 वॉट। ओके, अब आपने बेटा ये निकाला है, यहां से आप इसके बाद अब पावर निकालोगे बेटा इन करंट एलिमेंट्स के अक्रॉस। ओके, देखिए बेटा आप कैसे निकालोगे, V1 V2 आपने V3 मान रखा है, देखिए यहां से V1 माइनस 0, ओके, V1 माइनस 0 इक्वल टू क्या है बेटा 10 वोल्ट। आप देखिए बेटा V1 माइनस 0 इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, 10 वोल्ट बेटा, V1 माइनस 0 इक्वल टू 10, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, V1 इज इक्वल टू 10। ओके, V1 is equal to 10. अब in that case V1 minus V2, V1 minus V2 is equal to 2. In that case V1 minus V2 is equal to 2. That means V2 is equal to V1 minus 2. V1 क्या है बेटा 10, 10 minus 2 क्या होगा बेटा 8, 10 minus 2 8। ओके, V2 आ गया बेटा आपके पास 8। ओके, V2 8 है। नाउ इन दैट केस V3 कैसे निकालोगे बेटा, V1 V2 आ गया, अब V3 देखिए बेटा यहां से V3 माइनस V1। ओके, V3 माइनस V1 इज इक्वल टू 3। ओके, V3 क्या आएगा बेटा यहां से, V3 इज इक्वल टू 3 प्लस V1, V1 क्या बेटा 10 है, दैट इज 13, दैट इज V3 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। बेटा आपके पास V3 13 वोल्ट आ गया है। ओके, V1 10, V2 8, V3 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ अब पावर देखिए बेटा 4 एम्पियर के अक्रॉस, पावर 4 एम्पियर के अक्रॉस देखोगे बेटा क्या आएगा, पावर आएगा बेटा, पावर P इक्वल टू VI, V कितना है बेटा V2, V2 क्या है बेटा 8 और I क्या है बेटा माइनस का 4, क्योंकि बेटा आपका अपोजिट में है, यानी कि डिलीवर पावर होगा यहाँ से। ओके, तो माइनस का क्या आएगा बेटा 4, 8 इंटू 4 दैट इज माइनस का 32 वॉट। ओके, माइनस 32 समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखें, पावर एट 6 एम्पियर इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू 13। ओके, माइनस 6 इंटू 13 V3 दैट इज माइनस का 78 वाट। ओके, द नेक्स्ट वन इज पावर अक्रॉस द 5 एम्पियर, पावर अक्रॉस द 5 एम्पियर क्या होगा बेटा, 5 एम्पियर के अक्रॉस आपका पावर क्या होगा बेटा, V3 माइनस V2, V3 क्या है बेटा, V3 है बेटा 13, V2 क्या है बेटा 8। ओके, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 25 वाट। ओके, तो यहां से बेटा अब जो आपके पास जो पावर है बेटा, पावर जो है बेटा उन सबको पॉजिटिव पावर को ऐड कीजिए एक तरफ और नेगेटिव पावर को ऐड कीजिए दूसरी तरफ। बेटा पावर पॉजिटिव है बेटा, एब्जॉर्ब पावर, यानी कि एब्जॉर्ब पावर जो होगी आपके पास, पावर एब्जॉर्ब वो क्या होगी बेटा 100, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 प्लस 25 दैट इज 128। ओके, डिलीवर्ड पावर देखिए बेटा, पावर डिलीवर्ड नेगेटिव वाली देखिए बेटा, माइनस 18 माइनस 18 माइनस का 32 माइनस 32 माइनस 78, इनको बेटा आपने देखा तो कितना है ये बेटा माइनस का 128 आया। ओके, माइनस का 128
यानी कि एब्जॉर्ब पावर जो है बेटा वो डिलीवर पावर के क्या हुई, बराबर हुई बेटा। समझ में आया बेटा कुछ? एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर के इक्वल हुई ना। क्वेश्चन में बेटा यही आपको शो करना था कि एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर के इक्वल होती है। तो बेटा एब्जॉर्ब पावर आपकी 128 वाट आई और डिलीवर पावर आपकी माइनस का 128 वाट आई। ओके, चलिए बेटा इक्वल आई ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अपन पावर हो गया बेटा, एनर्जी की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पावर हो गया बेटा है ना, एनर्जी की बात करते हैं बेटा, एनर्जी एनर्जी। द नेक्स्ट वन इज एनर्जी। ओके, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डब्ल्यू से। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू द वर्क एंड इट्स यूनिट इज जूल। ओके, एनर्जी इज द कैपेसिटी, लिख लो बेटा, एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू द वर्क, ओके, एंड इट्स यूनिट इज यूनिट इज जूल। ओके, एंड इट्स यूनिट इज जूल। देखो बेटा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू द वर्क, यानी कि बेटा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं बेटा, है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल इसकी यूनिट होती है। चलिए बेटा इसको बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनर्जी डब्ल्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी पावर पी टी इंटू डी टी। फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर पी टी इंटू डी टी है। इसका मतलब है बेटा अगर आप पावर का इंटीग्रेशन कर दोगे, पावर का अगर बेटा इंटीग्रेशन कर दोगे 0 टू टी के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बेटा एनर्जी आ जाएगी। ओके, ये बेटा आपके पास जूल्स में, जूल